Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to my channel. And today I'm going to discuss about the Army Public Schools previous year question paper. The subject is economics PGT level. So previous video I already shared with you 10 questions with answers. So today I'm going to discuss 10 questions. So question number 11 is the method by which CSO estimates the national income is. Option number A is saying production method, number B income method, number C is expenditure method, and number D is a combination of all the three. So here will be the answer, a combination of all the three. So first of all we need to know what is national income and what is CSO. CSO stands for Central Statistics Office. And if I talk about national income, the national income, we have to calculate the monetary value of goods and productions in a nations during a period, means in 1 year economy period. So if I talk about the definition, that national income is referred to as the total monetary value of all the services and goods that are produced by a nation during a period of time. That is the definition. If I talk about the measured, how it is be measured, the national income of a country can be measured by three alternative methods. Here are both are mentioned: production method, income method, and expenditure method. Both are mentioned here. So today I am going to discuss about the first of all production method. That means production method and product method both are same. प्रोडक्शन मेथड क्या होता है कि प्रोडक्शन मेथड में हम लोग फाइनल गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स का कैलकुलेशन होगा. अब आप पूछोगे कि व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि जैसे कि फाइनल गुड्स तैयार होने से पहले जो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है या जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है एक फाइनल गुड्स तैयार होने में, एक अंतिम वस्तु तैयार होने में, तो वो बीच का जितने सारे मटेरियल चाहिए होता है वो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स. चलिए हम जानते हैं कि एक्चुअली में है क्या, हमें क्या कैलकुलेट करना है. वी नीड टू कैलकुलेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. आई ऑलरेडी सेड दैट. एंड फाइनल गुड्स हियर रेफर टू दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर और बायर एंड नॉट यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस. And goods which are further used in production process, that like raw materials and all, are called intermediate goods. In the value of final goods, value of intermediate goods is already included. That's why we will not calculate again, isn't? Otherwise it will be double na. So intermediate goods already calculate होता है final goods में, तो हम क्यों बार बार करें, डबल हो जाएगा. So we do not count value of intermediate goods in the national income. So we calculate money value of final goods and services. Otherwise there will be double counting of value. So for example, if used by house, we used milk for household, then it is final good, because when we purchase something for our family only for the purpose of consuming, then only it will be final goods. लाइक मिल्क अगर हम लोग ख़रीदते हैं 2-3 लीटर का ज़रूरत होता है, वो पर डे का होता है होगा हर एक फैमिली का, तो फिर वो हो जाएगा क्या, फाइनल गुड्स. अगर वही इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, अगर कोई फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई फैक्ट्री अगर बिजनेस पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, पनीर बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा. वही मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा और उसका जो क्वांटिटी है उनको मे बी 100 लीटर और 1000 लीटर ख़रीदना हो. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क अगर हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल हो रही है, इफ़ यूज्ड बाय हाउस होल्ड, दैन इट इज़ फाइनल गुड, because when we purchase something for our family only for the purpose of consuming, that is called final goods. And if I talk about intermediate goods, that is referred to as those goods that are used by business in the producing or services. Now one more example is there, like
एक मैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहती हूँ. Some spectacles and raw materials are there. You can see lens, glass और क्या है, फ्रेम, ये सारा दिख रहा है आप लोगों को. ये जो फ्रेम है, ग्लास है, लेंस है, ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है. एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें, वो है चश्मा, स्पेक्टिकल्स, हम लोग देख सकते हैं. चलिए, ये तो हमने समझ लिया. नाउ कम टू द इनकम मेथड. वाई वी यूज इनकम मेथड व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम. एक्चुअली under this method, national income is measured as a flow of factor incomes. There are generally 4 factors, isn't? 4 factors में क्या क्या है? लैंड फैक्टर्स है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. अब लैंड क्या होता है? लैंड होता है जहाँ पे आपको क्या मिलता है. लैंड, अगर आप लैंड दे रहे हो तो आपको उसके बदले में रेंट मिलेगा. ठीक है, देखिए आपका किस तरीके से इनकम हो रहा है. लैंड अगर आप दे रहे हो किसी को, अपने ज़मीन दे रहे हो खेती करने के लिए हो या फिर कोई भी चीज़, तो उसके बदले में आपको रेंट मिलेगा. लेबर, अगर कोई परिश्रम कर रहा है, श्रमिक लोग, उनका उसके बदले में उनको वेजेस यानी मजदूरी दिया जाएगा या फिर सैलरी दिया जाएगा. अगर बात करते हैं कैपिटल की, पूंजी की, तो अगर हम जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं अपनी पूंजी, तो उसके बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है. और रही बात एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये उद्यमी कहा जाता है हिंदी में. उद्यमी दैट मीन्स साहसी होना चाहिए. रिस्क लेने के लिए, रिस्क बेयर करने के लिए वो एबल हो, है ना, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज गेट्स प्रॉफिट. An entrepreneurship is a individual who creates a new business bearing most of the risk. मे भी हो सकता है उनको लॉस हो, बट उनका साहस होना चाहिए, वैसा उद्यमी होना चाहिए. लॉस प्रॉफिट तो बिजनेस में होते रहते हैं, बट रिस्क उठाने के लिए उनके अंदर वो जो है ब्रेवनेस होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए. रही बात लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इसमें से कुछ ना कुछ इनकम हो रहे हैं, जरिए अलग अलग हैं. अगर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि डॉक्टर्स, एडवोकेट, बिल्डर्स, ये सब हो गए, ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएंगे. चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में. एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में हम लोग जानने से पहले हम देखेंगे कि इस मेथड में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, है ना, ये सभी चीज़ों को देखेंगे. इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर को देखेंगे. लाइक C denotes consumer expenditure or consumed. I denotes investment on fixed capital. And G denotes government expenditure on final goods and services. X denotes export. M denotes import. If I talk about F denotes the national residence foreign production. That means जो हमारा नेशनल रेसिडेंट्स है, मतलब हमारे देश के लोग बाहर फॉरेन में जाके जो मनी अर्न करते हैं, वो है एफ से हम लोग डिनोट कर रहे हैं. और डी के बारे में अगर बताएं तो डी डिनोट द नॉन नेशनल रेसिडेंट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन. जो हमारे यहाँ के तो नहीं है, पर यहाँ आके जॉब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं मनी, है ना. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि डी तो हमारे लिए फ़ायदे नहीं है, तो डी को माइनस कर देंगे. और जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से ख़रीदते हैं, वो भी हमारे लिए लॉस है. 2 चीज़ हम लोगों को लॉस में आ गया ना. क्या क्या आ गया? एक तो हम अपना देश दूसरे के देश से अपने देश में ख़रीदारी कर रहे हैं, है ना. दूसरे देश से ख़रीदारी करना हमारे लिए लॉस है. दूसरी चीज़ है
बाहर के लोग हमारे देश में आके बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए लॉस है। सो हम लोग यहाँ पे फार्मूला के थ्रू देख सकते हैं। नेशनल इनकम फार्मूला यही है, C+I+G+X-M+F-T। जो हमारे लिए माइनस होगा, मतलब घाटा है, लॉस है, वो है -M एंड -T। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फिशर्स मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय द फॉर्मूला that C will be the correct answer. This is the formula. And come to the number 13. Number 13 is on 14th September 2012, Government of India has allowed FDI in multi-brand retail up to dash and in single brand retail up to dash. First of all, we need to know what is the full form of FDI and what is FDI. The FDI stands for Foreign Direct Investment. जब कोई विदेशी कंट्री, फॉरेन की कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है तो प्रॉफिट होगा, है ना। बट इकोनॉमी क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। अगर इकोनॉमी हमारा रन नहीं है, जैसे कि कोरोना के समय पे 2020 में कैसा हाल हो गया था, उस समय पे अगर कोई देश हमारे यहाँ FDI करे, इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि रनिंग इकोनॉमी में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओके है, अदरवाइज़ अगर एकदम गिरी हुई है इकोनॉमी हमारा देश में, शेयर का दाम पड़ा हुआ है, एकदम कम है, उस वक्त अगर वो ख़रीद लेगी तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हाई होगी शेयर का दाम, जब मार्केट इनको इकोनॉमी रन करेगा तो उनको तो प्रॉफिट होगा बाहर के देशों को, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जब भी हमारा इकोनॉमी रन हो, अच्छा खासा चल रहा हो, उस टाइम पे अगर कोई फॉरेन की कंट्री चाहती है इन्वेस्ट करना, हमारे शेयर को ख़रीदना FDI के थ्रू, तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स है। तो चलिए यहाँ पे ग्रीन फील्ड एक होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड होता है न्यू कंपनी, जो नया नया शुरू हुआ है, नया नया शेयर होल्डर्स है, नया नया कंपनी है। और एक ब्राउन फील्ड है जो कि ओल्ड कंपनियां होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि फॉरेन FDI जो है, FDI किस प्रकार हमारे देश में कुछ कुछ चीज़ें जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। FDI जो है, अगर रिसेंटली कुछ 1 साल की बात है कि चाइना ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो कि वहाँ में जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का चाइना का, तो वो HDFC, हमारा जो HDFC लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर खरीद लिया था और कुछ 1.01% हिस्सेदारी। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ख़रीदा था, FPI के थ्रू ख़रीदा था, ना कि FDI के थ्रू ख़रीदा था। क्योंकि FDI जब भी होगा तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और वो 10% से अधिक होता है। तो जब भी कोई देश 10% से अधिक इन्वेस्ट कर रही है, 10% से अधिक खरीद रहा है, तो वो हो जाएगा FDI के अंतर्गत। अगर FPI में 10% से बिलो ही रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर चाइना FDI के थ्रू 10% खरीद लेता तो वो हमारे देश के लिए रिस्क हो जाता। क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो 10% खरीदता भी, तो HDFC लिमिटेड कंपनी का जो कंपनी है, जो भी शेयर होल्डर, ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका बात सुनना पड़ता है। कोई भी कंपनी का ये रोल है। ADB बैंक का भी जापान और UN का जो है वो उनको सुनना पड़ता है, क्योंकि वो जापान और UN जो है ज़्यादा शेयर खरीद के रखे हैं। तो इसी प्रकार अगर FDI के थ्रू अगर इंडिया के HDFC लिमिटेड कंपनी का ज़्यादा शेयर चाइना खरीद लेता है, तो चाइना अगर चाहे तो उसको उसके हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं वो। मतलब उनका जो है, उनका एडवाइस सुनना पड़ेगा HDFC कंपनी को।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये जो चाइना है ज़्यादा ना खरीदे, एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना कर सके, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि जिस कंट्री को इन्वेस्ट एफडीआई करना होगा वो कर सकते हैं, परंतु हमारे पड़ोसी देश जिनकी बॉर्डर हमारे कंट्री के साथ टच हो रही है, उन देशों को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो इनडायरेक्टली वो चाइना को वहीं पे रोक दिया कि एफडीआई पे इन्वेस्ट ना कर पाए। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा तो देख लिए हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मल्टी ब्रांड रिटेल अप टू 51% एंड 100% सिंगल ब्रांड रिटेल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ह्यूमन कैपिटल मीन्स, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल मीन्स होता है मनुष्य पूंजी, यानी ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है क्या, कि ह्यूमन में क्या क्वालिटी है, हम मनुष्य में किस प्रकार का स्किल है, क्या क्वालिटी है, क्या एबिलिटी है, उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि कोई इंजीनियर, उसे इंजीनियरिंग आती है, उसे मशीन से रिलेटेड काम आएगा, राइट, वो फार्मिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि एक किसान जितने अच्छे से फार्मिंग कर सकता है, एक कृषक खेती जितना अच्छे से कर सकता है, उतना अच्छे से एक इंजीनियर खेती नहीं कर सकता, या फिर वो किसान भी इंजीनियर वाला काम जो है, मशीन बनाने का काम नहीं कर सकता है। एक दूसरे का काम अलग है, एक दूसरे के अंदर अलग अलग तरह के गुण होते हैं। तो ये स्किल, कैपेसिटी एंड एबिलिटी possessed by the population will be the correct answer. Now come to the question number 15. Which state has maximum number of people living below the poverty line? That will be Bihar. Bihar will be the correct answer. Come to the question number 16. Fiscal deficit is, fiscal deficit is जो फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है गवर्नमेंट ने जितना खर्चा बजट बनाया खर्चा करने के लिए, उससे अधिक जो खर्चा कर लेता है, उससे अधिक खर्चा हो जाता है। जो बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? दैट इज स्टेट ड्यूटी इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जानना बहुत ज़रूरी है गुड एंड सर्विसेज में। गुड एंड सर्विसेज में हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर जिसे कहते हैं। ऑल दोज टैक्स आर नॉन ट्रांसफरेबल, दोज टैक्स आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब होता है, नॉन ट्रांसफरेबल मतलब जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति पर इम्पोज करते हैं, अगर वो व्यक्ति टैक्स देने के बर्डन यानी किसी दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकता है, तभी वो डायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, मतलब अगर जो सैलरीड पर्सन है मान लीजिए, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किसी और पर मत्थे नहीं मार सकते हैं, है ना, उन्हीं को देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम लोग गोल्ड परचेज़ करने जाते हैं और गोल्ड परचेज़ करते समय हम जो एक हमें हमारा बिल बनता है 10,000 का, साथ में उसके साथ हमारा गवर्नमेंट सर्विस टैक्स भी लग जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगा रहता है। तो ये क्या होता है, ये ओनर को देना होता है, लेकिन ओनर नहीं देकर वो क्या करते हैं, वो हमारे मत्थे मार देते हैं, है ना। वो होता है ट्रांसफरेबल। इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स ट्रांसफरेबल हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल हो वो डायरेक्ट टैक्स है। सो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट है, बट स्टेट ड्यूटी ये हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। व्हाट इज बैंक रेट? मीन्स बैंक रेट इज,
Here will be the option number C will be the correct option. The rate at which central bank lends credit to the commercial bank. We know that what is bank rate. Actually bank rate क्या होता है? RBI यानी सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट गिरवी, कोई भी गिरवी नहीं रख के ही लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, और उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, लोन देने के बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है वो होता है बैंक रेट। कौन लोन देता है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक। आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। वो कमर्शियल बैंक को जब लोन देती है और उसके बदले में जो इंटरेस्ट लेती है वही होता है बैंक रेट। चलिए, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Question number 19 says the open market operations refer to the sale and purchase of dash by the RBI. ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में दो फंडा है, ध्यान से सुनिए। दो फंडा है। आरबीआई के पास जब पैसा आता है, लिक्विडिटी मनी सप्लाई कम होती है, ध्यान रखिएगा मार्केट में, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ? आरबीआई के पास जब पैसा आता है तो मनी सप्लाई जो है या लिक्विडिटी जो है मार्केट में कम होती है, और आरबीआई से जब पैसा दूर चला जाता है तो लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। तो अब सरकार बजट बनाती है और टैक्स के पैसे से ज़्यादातर क्या करती है? स्कीम वगैरह में खर्च करती है। स्कीम, रेशन का सामान वगैरह, एमएसपीज में कम दाम में खरीदना, ये सब करती है, ठीक है। तो ये जो स्कीम सब्सिडी का खर्चा है वो टैक्स के पैसे से होता है, लेकिन फिर भी अपनी सरकार जो है सब्सिडी स्कीम जो खर्चा ज़्यादा हो जाता है ना, तो जिसके कारण टैक्स का पैसा भी कम पड़ जाती है। उस वक्त क्या किया जाए? उस वक्त सरकार को बोरो करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। तो ऋण लेने के लिए तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, तो उसको देखते हुए क्या किया जाए? सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो आरबीआई के पास रखकर गवर्नमेंट जो है पैसा लेती है। अगर आरबीआई के पास उस समय उतना रुपए है तो दे देगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा? वो प्रिंट करके प्राइम मिनिस्टर को देगा। अब मान लीजिए आरबीआई के पास बहुत सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, तो आरबीआई के पास बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। अब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। कहाँ सेल करेगा? वो कमर्शियल बैंक को सेल कर सकता है, तो मनी सप्लाई को कम कर सकती है इस प्रकार। इससे बैंक के पास मनी कम हुआ, क्योंकि बैंक कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी आरबीआई से, है ना, तो मनी सप्लाई कम होगा मार्केट में। तो बैंक हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं जिससे उनको कुछ इंटरेस्ट मिल जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने पर कुछ 8 और 9% मिल जाए तो उन्हें अपने कस्टमर को, मीन्स डिपॉजिटर्स को 4 या कुछ इंटरेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है तो उसके चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। कंज्यूमर सरप्लस जानने से पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम प्राइस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। तो हम लोग आज कंज्यूमर सरप्लस के साथ साथ प्रोड्यूसर सरप्लस, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम मार्केट और इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा तो डिस्कस करने का भी टाइम है नहीं, तो
इसका अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ मैं। लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज सेइंग दैट हाउ इज द प्राइस चेंज अफेक्टिंग द डिमांड, मीन्स प्राइस चेंज होने का असर किस प्रकार मांग पर पड़ रहा है। तो वी कैन सी हियर दैट इफ द प्राइस इज 5 then quantity demand is 200. When the price is 10, quantity demand is 150. When the price is 20, quantity demand is 50. So we can see here if the price is increased, then quantity demand will be high. So we can see here, if the price will be increased, then quantity demand will be lower. So inverse relationship between price and demand we can see through diagram. Here it is, if the price is 5, अगर price 5 है तो डिमांड क्या है? डिमांड ज़्यादा है, 200 है ना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस रखे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड रखे हैं। हम लोग प्राइस वाई एक्सिस पे इसलिए रखे हैं क्योंकि हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर को हम लोग वाई एक्सिस पर रखते हैं और एक्स एक्सिस पर जिस पर प्रभाव पड़ता है, मीन्स जो डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम लोग प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी डिमांड, इसीलिए प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है। सो वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस रखे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड रखे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर प्राइस 5 से 20 इंक्रीज करता है तो डिमांड जो है क्या होगा? 20 रुपीज़ इंक्रीज करने पे डिमांड, पहले जब 5 रुपीज़ था तो डिमांड था 200, जब प्राइस इंक्रीज करके 20 हो गया तो डिमांड कम होके 50 हो गया। इस प्रकार आप 10, 15 ये सब सारे देख सकते हैं कैसे कैसे प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड वी कैन सी हियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, if I talk about law of supply says that the law of supply states that a higher price leads to a higher quantity of supply, right? And that a lower price leads a lower quantity supply. That means अगर प्राइस चेंज होने का असर किस प्रकार पूर्ति पर पड़ रहा है, हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई में ही देखते हैं। ओके, सो प्राइस चेंज जैसे जैसे अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्राइस अगर बढ़ रहा है, हम लोग देख सकते हैं प्राइस जैसे जैसे 5 से 10, 15, 20 होता है, वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है? 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 इंक्रीज हो रहे हैं। इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है यहाँ। इनवर्स कहाँ पे है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, और लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट
लेते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। प्रोड्यूसर सरप्लस होता है जब सेलर 5 रुपए में भी बेच के अपनी वस्तु को अगर 5 रुपए में बेचता है तो भी उसे घाटा नहीं होता, लेकिन वो कितना में बेचता है, वो 12 रुपए में बेचता है। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस है 12 रुपए मान लीजिए, लेकिन अगर वो 5 रुपए में भी बेचता है तो उसे घाटा नहीं होता है। तो ये जो 5 में नहीं बेच के वो 12 रुपए में बेच रहा है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। पीएस मीन्स प्रोड्यूसर सरप्लस, सीएस मीन्स कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, चलिए हम लोग ये तो समझ लिए कि हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेस सप्लाई क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, कब होता है एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन कब आता है, और एक्सेस डिमांड का सिचुएशन मार्केट में कब आता है, कब होता है ऐसा। तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे क्या होगा, वैसे वैसे डिमांड घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ऑपोजिट रिलेशंस है। और हमने यहाँ पर देखा था प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में, यहाँ प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे प्राइस बढ़ रहा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम ये वाला पोजीशन है, यानी मान लीजिए 12 रुपए लेके चल रहे हैं तो 12 रुपए ही मान के चलिए, ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब मान लीजिए कि जब प्राइस 20 होता है तो प्राइस 20 होने से सेलर कहता है कि प्राइस तो बढ़ गया भाई, अब तो हम ज़्यादा बेचेंगे, हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे। तो वो क्या करता है, 20 रुपीज़ होने पे उसका सप्लाई, ये हम लोग देख सकते हैं ये सप्लाई कर्व है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं इतना सप्लाई बढ़ गया है, तो ये एक्सेस सप्लाई है, प्राइस बढ़ने से एक्सेस सप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा डाउन स्लोप में जो है लेफ्ट टू राइट ये डिमांड कर्व है। हम लोग जब 5 रुपए वस्तु का दाम हो जाता है घट के प्राइस, जब वस्तु का प्राइस 5 रुपीज़ हो जाता है तो हम लोग देख सकते हैं ना सप्लाई कम हो गया, इतना हो गया, सप्लाई कम हो गया, लेकिन डिमांड क्या हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो एक्सेस डिमांड हो गया। देखिए डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड आ गया, तो ये हो जाएगा, ये वाले जो क्षेत्र है, ये वाले जो पोजीशन है ये एक्सेस डिमांड का है। प्राइस कम होने से एक्सेस, बहुत ज़्यादा प्राइस कम हो जाने से एक्सेस डिमांड में चला जाता है, एक्सेस डिमांड हो जाता है, और बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाने से मार्केट में एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन आ सकता है। तो आई होप ये सारा आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ध्यान में रखें कि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे चैनल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाना है प्लीज़ वो भी कमेंट करें। प्लीज़ थैंक यू, बाय बाय।